اچھا جگرام، ہمارا آج کا جو سفر ہے مدینہ منورہ کی مقدس زیارت کا سفر ہے۔ اچھا جگرام، ہماری پہلی زیارت ہوگی مسجد قباء۔ اچھا جگرام، آپ کے الٹے ہاتھ پر دیکھے یہ مسجد عثمان آنے لگی ہے، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ مسجد عثمان کی زیارت کر لیجیے۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر آنے لگی ہے مسجد عثمان، سفید کلر کی مسجد ہے۔ یہ دیکھیں مسجد عثمان، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ اچھا جگرام، اسی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی گھر میں 40 دن قید کیا گیا۔ ان کو کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اچھا جگرام، 40 دن بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اچھا جگرام، یہ مسجد بلال کی آپ لوگوں نے زیارت کی ہے۔ جو سامنے دیکھیں سبز گنبد والی مسجد آپ کے الٹے ہاتھ پر، ابھی ہم گھوم کر آئیں گے، اس کے نزدیک آئیں گے۔ یہ مسجد بلال ہے، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ مسجد بلال کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے۔ مسجد بلال کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے۔ یہاں نہ تو کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نہ ہی کبھی نماز پڑھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مسجد نبوی کے موذن رہے۔ اچھا جگرام، مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کے نام کی مسجد موجود تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد موجود نہ تھی۔ تو سعودی حکومت نے حضرت بلال کی اسلامی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مسجد تعمیر کی، اس کو مسجد بلال کا نام دیا۔ اس کو بلال سوق بھی کہتے ہیں، بلال مارکیٹ بھی کہتے ہیں۔ اچھا جگرام، آپ لوگوں کو معلوم ہے مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ وادی یثرب، یعنی دکھوں اور پریشانیوں بیماریوں والا شہر۔ اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابہ تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ تھے جو چلتے تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھے، جو چلتے تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھے، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پہ سنائی دیتی تھی۔ اچھا جگرام، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ پہ چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیسرے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جہاں میں اور تم چل رہے ہو، یہ تیسرے قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے، جو چلتا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہے، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پہ سنائی دیتی ہے۔ جگرام، راستے میں میدان آئے گا خاک شفا کا میدان، خاک شفا کا میدان، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا وادی یثرب، یعنی دکھوں، پریشانیوں اور بیماریوں والا شہر۔ یہاں سے کوئی بھی قافلہ گزرتا تو وہ کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا جیسے کوہڑ وغیرہ کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اچھا جگرام، لیکن جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس وادی یثرب میں پڑے تو یہ وادی یثرب سے وادی مدینہ ہو گیا، مدینہ طیبہ ہو گیا، روشنیوں والا شہر ہو گیا، برکتوں والا شہر ہو گیا۔ جگرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے، خاک شفا والی جگہ پر۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ جدھر بیٹھے ہو ادھر سے مٹی اٹھاؤ، اپنے جسموں پر لگا لو۔ تو صحابہ کرام نے وہاں سے مٹی اٹھائی، اپنے جسموں پر لگا لی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی وقت شفا دے دی تھی۔ اس لیے اس میدان کو خاک شفا کا میدان کہتے ہیں۔ اچھا جگرام، اس کے ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے،
حضرت سلمان فارسی کا باغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھوں سے لگایا حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی سے آزاد کروانے کے لیے. حجاج کرام، حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے تھے، ایک یہودی کے غلام ہو کر رہ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس بات کا علم حضرت سلمان فارسی کو ہوا. تو حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آیا تھا، ایک یہودی کا غلام ہو کر رہ گیا. آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میں اپنی آگے کی جو زندگی ہے وہ دارا اسلام کے مطابق گزار سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان، تمہارا جو مالک ہے وہ تمہاری آزادی کا کیا چاہتا ہے، وہ تمہاری آزادی کا کیا مانگتا ہے؟ تو اس بار حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ 300 کھجوروں کے درخت کا تقاضا کرتا ہے. 300 کھجوروں کا درخت لگاؤ، جب وہ بڑا ہو جائے گا اس کو پھل لگ جائے گا، پھل لگ کر پک جائے گا، پھر میں تم کو آزاد کروں گا. تو حجاج کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، پریشان نہ ہو، جا کر کھڈے کھودو. حضرت سلمان فارسی نے جا کر کھڈے کھودے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے دستے مبارک سے وہ گٹھلیاں لگائیں، وہ چھوٹے درخت لگائے. حجاج کرام، صحابہ کرام نے پیچھے سے پانی ڈالا. شام کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. حجاج کرام، یہ دیکھیں اپنے الٹے ہاتھ پر یہ خاک شفا کا میدان ہے، یہ دیکھیں. اور اس کے بیک سائڈ پر جو باغ ہے جو حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنت سے مدینہ منورہ میں لگایا. یہ بورڈ بھی دیکھیں، ممنوع الدخول، یعنی یہاں رکنا منع ہے. یہاں آپ اپنی ٹیکسی بھی لے کر آئیں گے تب بھی نہیں رک سکتے، اگر آپ پیدل بھی آئیں پھر بھی یہاں آپ نہیں رک سکتے. یہ جتنا بھی بڑا آپ کو باغ نظر آ رہا ہے یہ حضرت سلمان فارسی کے نام کا باغ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنت سے مدینہ منورہ میں لگایا، اور یہ عجبہ کھجور کا باغ ہے. حجاج کرام، شام کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. صبح نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں باغ بڑا ہو چکا تھا، اس کو کھجوریں لگ چکی تھی، کھجوریں لگ کر پک چکی تھی. حجاج کرام، جب یہ معجزہ اس یہودی نے دیکھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ باغ جو ہے جو حضرت سلمان فارسی کو تحفے میں دے دیا. حجاج کرام، اس یہودی کی ایک اور بھی شرط تھی 40 کو تولے کی، لیکن میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے. اس نے ایک اور شرط بھی رکھی تھی 40 تولے کی. حجاج کرام، ابھی ہماری زیارت آ گئی ہے مسجد قباء. مسجد قباء کی فضیلت سن لیجئے. حجاج کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص باوضو ہو کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب دیں گے. سبحان اللہ. حجاج کرام، آپ جہاں 2 کریں، 4 کریں، 6 کریں، جتنے بھی ادا کریں گے ایک ہی مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اگر دوسرے عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہے اس کی شرط یہ ہے آپ کو پھر دوبارہ اپنے مقام پر جانا پڑے گا، وہاں سے وضو کر کے پھر آنا پڑے گا، پھر آپ کو دوسرے عمرے کا ثواب ملے گا. حجاج کرام، جہاں آپ کو 25 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، آپ لوگ 5 منٹ جانے کے لگیں گے، 5 منٹ آنے کے لگیں گے، 5 منٹ وافل پہ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کو 25 منٹ کا ٹائم دیں گے. اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر نیچے، ابھی نہیں، جب نیچے اترو گے اس وقت اپنا ٹائم دیکھنا. 25 منٹ کا ٹائم ہوگا. 25 منٹ کا مطلب 25 منٹ آپ نے جانا ہے نوافل ادا کرنے، واپس گاڑی میں آنا ہے. حجاج کرام، یہ سن لیجئے، 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد قباء. 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد قباء. دل میں جو نیت کرنی ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے یہ نوافل ادا کر رہے ہیں. حجاج کرام، جس جگہ پر گاڑی لگائیں گے گاڑی کا تعین کرتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ گاڑی کہاں کھڑی ہے، گاڑی کا نمبر نوٹ کرتے جائیں. 4093 گاڑی کا نمبر ہے، 4093. 4093 گاڑی کا نمبر ہے، سفید کلر کی گاڑی ہے، القریشی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باڈی کے اوپر. اس بات کا خیال رکھنا ہے جس راستے سے جانا ہے اسی راستے سے واپس آنا ہے. مسجد کے جس گیٹ سے اندر داخل ہونا ہے اسی سے باہر نکلنا ہے. اگر مسجد کے آپ ایک گیٹ سے داخل ہوں گے دوسرے سے نکلیں گے تو آپ بھول جائیں گے، کیونکہ اس مسجد کے چاروں طرف پارکنگ ہے،
चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। आपको ऐसे मालूम होगा हमारी गाड़ी इस तरफ है, हालांकि उस तरफ आपकी गाड़ी नहीं होगी। इस चीज का खास क्या रखना है, जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से वापस आना है। मस्जिद के जिस गेट से अंदर दाखिल होना है उसी से बाहर निकलना है। जजग्राम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना किराया निकाल लें। अभी देखें आप, हम बस से उतर चुके हैं, पीछे बस लगी है हमारी और हम अब कुबा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। पीछे आप कुबा मस्जिद यही है, आप देख सकते हैं कुबा मस्जिद। ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर की थी, ये पहली मस्जिद है कुबा मस्जिद। यहाँ सुबह के टाइम हुज्जाज किराम का भीड़ देखें आप, कि आप देख सकते हैं कुबा मस्जिद पर। हमको इस मस्जिद कुबा की अंदर की वीडियो के लिए हमारे प्रोफाइल में जाए, आप देख सकते हैं। और ये देखें चाय और पानी और खजूर फ्री में मिला है। यहाँ पे हर जगह बांटते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको मिलेगा पानी, खजूर। और ये देखें चाय है, पानी है, खजूर है। जजग्राम मशवरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। उन सहाबा में से लंबी उम्र वाले जो सहाबी थे वो हजरत सलमान फारसी थे। हजरत सलमान फारसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने फारस में जितनी भी जंगें लड़ी हैं खंदक खोदकर और उसमें आग भरकर लड़ी हैं, हमने हर जंग में फतह हासिल की है। जजग्राम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि ऐ सलमान, तुम्हारा खंदक वाला मशवरा तो मुझे कबूल है, लेकिन तुम्हारा आग वाला मशवरा मुझे कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं किसी काफिर को भी आग में जलता हुआ नहीं देख सकता। जजग्राम जी आपके उल्टे हाथ पर देखें सफेद कलर की मस्जिद है। आपके उल्टे हाथ पर सफेद कलर की मस्जिद, मस्जिद जुमा। मस्जिद जुमा जहां इस्लाम का सबसे पहला जुमा पढ़ाया गया। मस्जिद जुमा जहां इस्लाम का सबसे पहला जुमा पढ़ाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर मौजूद थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और मुसलमानों पर जुमा वाजिब हुआ, खुतबा वाजिब हुआ। जजग्राम कुरान पाक में सूरत जुमा है, उसकी चंद आयात इसी जगह से मुंसलिक है। सूरत जुमा की चंद आयात इसी जगह से मुंसलिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर मौजूद थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, मुसलमानों पर जुमा वाजिब हुआ, खुतबा वाजिब हुआ। जजग्राम अभी गाड़ी हमारी करीब जाएगी, करीब से ज़ियारत कीजिए मस्जिद जुमा की। और इसके सामने, बिल्कुल सामने आपको मदरसा कस्बत अल आहलिया, बच्चियों और बच्चों का मदरसा है, रोड के दूसरी साइड पर। वो भी आपको दिखाते हैं, उसके मुतालिक बताते हैं आपको। ये मस्जिद जुमा की ज़ियारत कर लीजिए। जजग्राम जो सामने देखें मदरसा, मदरसा कस्बत अल आहलिया, बच्चियों और बच्चों का मदरसा है। जजग्राम अभी गाड़ी ऊपर से घूम कर आएगी, नजदीक जाएंगे, वो आपके नजदीक आएगा मदरसा, ज़ियारत करवाएंगे आप लोगों को। कस्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। कस्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी इसी जगह पर रुकी थी जिसका नाम था कस्बा। और ये आपको बता दो, मदरसा कस्बत अल आहलिया ये जो जगह थी, यहाँ हजरत अयूब अंसारी का घर था। हजरत अयूब अंसारी का इस जगह पर घर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी इसी जगह पर आकर रुकी थी और बच्चियों ने डफ बजाकर एक नाद पढ़ी थी आपके इस्तकबाल के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, वो डफ बजाकर नाद पढ़ी थी, बहुत मशहूर नाद है, तला अल बदर अलैना। तला अल बदर अलैना के मैनी है देखो देखो चौदहवीं का चांद आया। जजग्राम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर आए थे तो बच्चियों ने डफ बजाकर जो नात पढ़ी थी, तला अल बदर अलैना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। तला अल बदर अलैना के मैनी है देखो देखो चौदहवीं का चांद आया।
जज ग्राम अभी हमारी गाड़ी यू टर्न लेगी आपके फिर सीधे हाथ पर हजरत सलमान फारसी का खजूरों का बाग और खाके शफाक का मैदान। ये देखिए खजूरों का बाग, अजवा खजूर का बाग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। अल्लाह ताला ने ये बाग डायरेक्ट जन्नत से मदीना मुनव्वरा में लगाया। ये बाग डायरेक्ट अल्लाह ताला ने जन्नत से मदीना मुनव्वरा में लगाया। और जज ग्राम सबा मसाजिद के बारे में बता रहा था। जज ग्राम जब कफार मुशरकीन ने तीसरी जंग का ऐलान किया तो ये खंदक खोदी गई जो मदीना के एक कॉर्नर से लेकर ओहद के पहाड़ तक खंदक खोदी गई, जिसकी गहराई 6 गज थी, चौड़ाई 4 गज थी, ताकि कफार मुशरकीन का बड़े से बड़ा घोड़ा भी इस खंदक को क्रॉस ना कर सके। जज ग्राम ये खंदक क्यों खोदी गई थी? यह खंदक इसलिए खोदी गई थी, कफारे मुशरकीन मस्जिद नबवी पर हमला करना चाहते थे। मुसलमानों की तादाद कम थी, कफार की तादाद ज्यादा थी, उनको रोकने के लिए यह खंदक खोदी गई थी। जज ग्राम जो खंदक की खुदाई में 3000 सहाबा ने हिस्सा लिया था, 3000 सहाबा ने हिस्सा लिया था। और ये मदीना के एक कॉर्नर से लेकर ओहद के पहाड़ तक खोदी गई थी। जज ग्राम ये 22 से 23 दिन में मुकम्मल हुई, 22 से 23 दिन में मुकम्मल हुई। और पहली जो ज़रब लगाई थी वो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी। जज ग्राम अभी जो ज़ियारत आएगी मदरसा कस्बत अल आलिया, उसकी ज़ियारत करवाते हैं आप लोगों को। जज ग्राम आपके उल्टे हाथ पर मस्जिद जुमा और आपके सीधे हाथ पर मदरसा कस्बत अल अहलिया, बच्चियों और बच्चों का मदरसा है। यहाँ हजरत अयूब अंसारी का घर था। ये जिधर लोहे की प्लेटें लगी हुई हैं, ये देखिए मदरसा अल कस्बत अल अहलिया, बच्चियों और बच्चों का मदरसा है, ज़ियारत कर लीजिए। तो 10 नंबर गेट, वहां से आप बाहर निकलेंगे, आपके उल्टे हाथ पर ये रास्ता आता है जो सीधा मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा को आता है। ये स्पेशल सऊदी हुकूमत ने हाजियों के लिए बनाया है। ये पैदल आपका 25 से 30 मिनट का रास्ता है। आप कोशिश किया करें कि सुबह नमाज फजर जो है वो मस्जिद नबवी में अदा करें और 2 नवाफिल जो है वो आकर मस्जिद कुबा में अदा करें, ताकि आप लोगों को एक मकबूल उम्रे का सवाब मिल सके। जज ग्राम आप लोगों ने खाना काबा में उम्रा किया, वो अल्लाह ताला की मर्जी है कबूल करे या ना करे। लेकिन जो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ये हमारा ईमान है कि वो हक है और वो सच है। और हमारे आका ने ये फरमा दिया है कि जो शख्स बावजू होकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करेगा, अल्लाह ताला उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब देंगे। आपका कबूल हुआ उम्रा। तो कोशिश करें कि जितने दिन आप इधर हैं सुबह नमाज फजर मस्जिद नबवी में अदा करें और 2 नवाफिल जो है वो आकर मस्जिद कुबा में अदा करें। तो जज ग्राम खंदक के बारे में बता रहा था आप लोगों को। यह खंदक इसलिए खोदी गई थी कि कफारे मुशरकीन मस्जिद नबवी पर हमला करना चाहते थे, उनको रोकने के लिए यह खंदक खोदी गई थी। तो जज ग्राम खंदक की खुदाई के दौरान भाई साहब आप लोगों को नींद आ रही है? नहीं, बताएं। जज ग्राम खंदक की खुदाई के दौरान एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2 दिन से भूखा और प्यासा हूँ, मैं 2 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। भूख और प्यास की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है। तो कुर्बान जाऊं अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया, अपनी कमीज उठाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख और प्यास की वजह से अपने पेट पर 2 पत्थर बांध रखे थे।
हजरत इकराम पास ही खड़े हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हो जो देख रहे थे, उनसे देखा ना गया, उनसे रहा ना गया। उनका घर पास ही था, वो अपने घर गए, अपनी अहलिया से पूछा कि घर में कुछ खाने के लिए है। तो अहलिया ने कहा कि एक बकरी का बच्चा है, 2 से 2.5 किलो जौ का आटा मौजूद है। तो इस पर हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से कहा कि आप खाना तैयार करें, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का बोल कराता हूँ। जजगरा बाद में बताता हूँ, जो आपके सीधे हाथ पर देखें, ये तुर्की स्टेशन है, वो सामने तुर्की म्यूजियम है। ये तुर्की स्टेशन, ये सामने तुर्की म्यूजियम, इसके बारे में सुन लीजिए। तुर्की की हुकूमत आई थी सल्तनत उस्मानिया, तुर्की की हुकूमत सल्तनत उस्मानिया आई थी। उन्होंने ये स्टेशन कायम किया था। यहाँ से मदीना से मक्का को ट्रेन चलती थी। हजरत ये सामने जो आपको तुर्की म्यूजियम दिखाया है, इसमें अम्मा आयशा की चक्की पड़ी हुई है और बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं जिनकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये हरम के 310 गेट से बाहर निकलना है। ये भी हरम के 310 गेट से आप बाहर निकलेंगे, मस्जिद उमामा है, मस्जिद उमामा के साथ KFC है, KFC के साथ ये रास्ता है। 310 गेट से लेकर तुर्की म्यूजियम तक आपका पैदल सफर जो है 6 मिनट का है, 6 मिनट का सफर है। और ये हजरत इकराम सुन लीजिए, इसमें कोई आपकी टिकट नहीं है, इस म्यूजियम की कोई टिकट नहीं है, ये फ्री है। ये सुबह 9 बजे खुलता है और शाम असर टाइम तक ये खुला रहता है। तो कोशिश किया करें कि जो साथ साथ आपके बिल्कुल साथ साथ जाते हैं, ये लाजम करके जाया करें। हजरत इकराम आपको बता रहा था मैं खंदक के बारे में। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से देखा ना गया, रहा ना गया, वो अपने घर गए, अपनी अहलिया से पूछा कि घर में खाने के लिए कुछ है। तो अहलिया ने कहा कि 2 से 2.5 किलो जौ का आटा मौजूद है और एक बकरी का बच्चा मौजूद है। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से कहा कि आप खाना तैयार करें, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का बोल कराता हूँ। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल की। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप आ जाइए और चंद सहाबा को अपने साथ ले आइए। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि खंदक में जितने भी सहाबा ऐसा लिए हुए सबको दावत का बोल दो। तो हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए कि खाना तो 5 से 6 लोगों का है, जो 3000 सहाबा खाना कैसे खाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबर को परेशान देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ जाबर, परेशान ना हो, जैसा कहा है वैसा ही करो। तो हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना, सब साहबा को दावत दे दी। सब साहबा हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले आए। हजरत इकराम जो खाना पक रहा था, जो हंडिया पक रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो हंडिया नीचे उतारी और अपनी काली कमली वाली चादर उस हंडिया पर रख दी और अपने दस्ते मुबारक से वो खाना तकसीम किया। हजरत इकराम रिवायत में आता है कि 3000 सहाबा ने वो पेट भर कर खाना खाया। खाना तो 5 से 6 लोगों का था, लेकिन 3000 सहाबा ने वो पेट भर कर खाना खाया और वो खाना अहले मदीना में भी तकसीम किया गया। हजरत इकराम ये ऊपर पहाड़ी पर देखे, आपके उल्टे हाथ पर ये क्रीम कलर की मस्जिद है, मस्जिद फतह, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा हुआ करता था जंग के दौरान, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज तक बैठकर दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने तीसरे रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की थी। ऐसी आंधी और तूफान आया था कि कफारा मुशरकीन के खेमे उखड़ गए थे, उनके घोड़े यहाँ से भाग गए थे और कफारे मुशरकीन भी यहाँ से भाग गए थे। और जो नीचे देखे काले पत्थरों वाली, ये हजरत सलमान फारसी के नाम की मस्जिद है। यहाँ हजरत सलमान फारसी का खेमा हुआ करता था जंग के दौरान। और हजरत इकराम जो बड़ी मस्जिद जामिया खंदक मस्जिद, ये 3 मस्जिद शहीद करके एक मस्जिद तामीर की गई ताकि यहाँ के मुकामी लोग इसमें नमाज भी अदा कर सके और जुमा भी अदा कर सके। एक हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की थी, एक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की थी और एक हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की थी। और हजरत इकराम आपके सीधे हाथ पर देखे, जो हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की मस्जिद है, जहाँ हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा हुआ करता था जंग के दौरान।
حجاج کرام اتنا روزہ نہ ہوگا الٹے ہاتھ پر حضرت مولا علی شیر خدا کی مسجد، حضرت علی کے نام کی مسجد ہے، اس کی بھی زیارت کر لیجئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، یہ دیکھیں صحیح ایک سائر دی کتنا سائر دلا دے کے دے باقی میں کوئی جگہ ہے سائر دی کتنا 2 منٹ واسطے لگانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منیر انصاری میں موجود ہوں مدینہ کے 7 مساجد پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، اور چلیے آپ لوگ کو اور زیارت کراتے ہیں۔ سامنے جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ علی شیر خدا کی مسجد ہے، یہ سامنے والی، اور ادھر دیکھیں، ادھر بھی ہم کو اتنا معلوم نہیں ہے، لیکن ادھر بھی کسی کا خیمہ ہوا کرتا تھا، ابھی یہاں پہ مسجد بن چکا ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی مسجد ہے، آپ دیکھیں، اور دیکھیں بہت پرانی مسجد ہے۔ اور یہ جو وائٹ والی مسجد دکھ رہی ہے، مسجد 7 مساجد ہے، اس پہ 3 مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ چھوٹا پڑ جا رہا تھا جماعت کے لیے، لوگ زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ اور یہ سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ہے، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ہے۔ اور یہ چلیے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور وہ اوپر جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ خندق کھودی گئی تھی، یہ اوپر بھی گھر بنے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اوپر کا بنائیں گے۔ اور یہ جو سامنے جو مسجد دکھ رہا ہے وہ والا مسجد، وہ مسجد وہاں پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ یہ کالی بس کے جو قدم سامنے دکھ رہا ہے وہ والی مسجد، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اوپر جا کے بنائیں گے، اور مسجد کے اندر ابھی ٹائم بہت کم ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سارے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جا رہے ہیں ابھی، اور ادھر دیکھیں حجاج کرام سبھی آئے ہیں، اور یہ 7 مساجد، اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حجاج کرام کافی تعداد میں ہیں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں، ابھی ہم یہاں سے نکل چکے ہیں، اب نیکسٹ جگہ چلتے ہیں، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، وہاں پہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے اب بس میں چلتے ہیں، یہ ہمارا بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا بورڈ کی تھی، اور 3000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا تو 5 سے 6 لوگوں کا تھا، لیکن 3000 صحابہ نے اسی گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ حجاج کرام زیارت کر لیجیے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی تھی، اور 3000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور وہ کھانا اہل مدینہ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ حجاج کرام جب صحابہ کرام دعوت کھا کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والی چادر اٹھا کر دیکھا تو کھانا ویسے کا ویسا ہی موجود تھا۔ تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کھانا کیسے تقسیم ہو گیا؟ کھانا تو 5 سے 6 لوگوں کا تھا، یہ 3000 صحابہ نے کھانا بھی کھا لیا، اور یہ کھانا اہل مدینہ میں بھی تقسیم ہو گیا، لیکن کھانا ویسے ہی پڑا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے جابر، اگر یہ کالی کملی والی چادر تو تا قیامت تک نہ اٹھاتا، تجھے تا قیامت تک کھانا ایسے ہی تقسیم ہوتا، کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ یہ معجزے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حجاج کرام ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد قبلتین، 2 گنبدوں والی مسجد، 2 قبلوں والی مسجد۔
आप लोगों को मालूम है मुसलमानों का पहला किबला कौन सा हुआ करता था? मस्जिद अक्सा। किसी हाजी को मालूम है? मस्जिद अक्सा। बैतुल मकदस मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन में मौजूद है। हज्जाज किराम, पहले मुसलमान और यहूदी लोग एक ही तरफ मुंह करके अपनी इबादत किया करते थे। यहूदी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे कि आप हो तो मुसलमान और किबला हमारा इस्तेमाल करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हर वक्त ये ख्याल लगा रहता था कि काश हमारे बाप दादा वाला किबला जो है वो हमारा किबला हो जाए, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला, यानी कि खाना काबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना एक सहाबी की इजाजत के लिए आए थे, इसी जगह पर मौजूद थे, मस्जिद किबला कहने वाली जगह पर। नमाज का वक्त हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे थे, 10 सहाबा आपके पीछे नमाज अदा कर रहे थे। हज्जाज किराम, एक रवायत में आता है कि जोहर की नमाज का वक्त था और एक रवायत में आता है कि असर की नमाज का वक्त था, यानी 4 फर्ज रकात वाली नमाज थी। ये मालूम नहीं कि जोहर की थी या असर की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज फर्ज जो अदा करवाई वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके अदा करवाई। हज्जाज किराम, उन्हीं 2 रकात नमाज फर्ज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। यूं बार बार आसमान की तरफ देखना अल्लाह ताला को बेहद पसंद आया। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजना मकसूद किया और कहा जाकर मोहम्मद से कह दीजिए, क्या कहा? जाकर मोहम्मद से कह दीजिए जिस तरफ अपना चेहरा घुमाने में उसी तरफ किबला रुख कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि आप जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दे कि खाना काबा की तरफ चेहरा कर ले, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाकर मोहम्मद से कह दीजिए जिस तरफ अपना चेहरा कमाने में उसी तरफ किबला रुख कर दो। हज्जाज किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज ही की हालत में वही नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ कर दिया। मिसाल के तौर पर हज्जाज किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जमात करवा रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पीछे घूम गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पीछे घूमे तो जो 10 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, उनके चेहरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के सामने हो गए। जब चेहरे आमने सामने हुए तो उन 10 सहाबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हमारे चेहरे के सामने हो गया है। तो 10 के 10 सहाबा पीछे से घूमे, पीछे से घूमकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए, नमाज अदा हुई। नमाज अदा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 सहाबा से पूछा कि मुझे तो अल्लाह का हुक्म हुआ था, मैंने अल्लाह के कहने पर अपना किबला रुख चेंज किया, आप लोगों को किसने बोला था किबला रुख चेंज करने का? तो हज्जाज किराम, उन 10 सहाबा की मोहब्बत देखिए। उन 10 सहाबा ने एक ज़बान होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही हमारा किबला है, आप ही हमारा काबा है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हज्जाज किराम, ये गुफ्तगू इन 10 सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो रही थी। अल्लाह ताला देख रहे थे, अल्लाह ताला सुन रहे थे। अल्लाह ताला ने फिर से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजना मकसूद किया और कहा जाकर मोहम्मद से कह दीजिए, क्या कहा? जाकर मोहम्मद से कह दीजिए इन 10 सहाबा ने आपसे मोहब्बत की इंतहा कर दी है। इन 10 सहाबा ने आपसे मोहब्बत की इंतहा कर दी है। इन 10 सहाबा को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दो। हज्जाज किराम, ये 10 अशरा मुबशरा वो सहाबा थे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। हज्जाज किराम, यहाँ भी हमारे 2 रकात नमाज नवाफिल तहियतुल मस्जिद किबलतैन, 2 रकात नमाज नवाफिल तहियतुल मस्जिद किबलतैन। और जो मस्जिद के सामने आपको वादी नजर आएगी, उस वादी का नाम है बनु सलमा। बनु सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराल था। बनु सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराल था। अच्छा जी ग्राम, इधर भी आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 25 मिनट में वापस आ जाए। मस्जिद कुबा में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ आप जल्दी आने की कोशिश करें ताकि हमारी अगली जो ज़ियारतें हैं
वो भी मुकम्मल हो जाए और हमारी जोहर की नमाज जो है वो मस्जिद नबवी में बाजमात अदा हो जाए इंशाल्लाह। हजाजी ग्राम। मस्जिद नबवी में बाजमात एक नमाज अदा करेंगे तो आपको 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में एक नमाज बाजमात अदा करेंगे 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर यही नमाज आप खाना काबा की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करेंगे, खाना काबा की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करेंगे तो आपको 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश किया करें कि बाजमात नमाज अदा करें। हमारे ये पाकिस्तान से हाजी लोग आते हैं, इधर से कपड़ा खरीदते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पाकिस्तान में बहुत है, कपड़ा परफ्यूम हमारे पाकिस्तान में बहुत है कि निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, मक्का मदीना से हो, ताकि जब तक आप उसको इस्तेमाल करें आपको उसका अजर मिलता रहे, आपको उसका सवाब मिलता रहे। हजाजी ग्राम वही अगर आप किसी को गिफ्ट देंगे ये तोहफा, जब तक वो इस्तेमाल करेगा उसको तो उसका सवाब मिलेगा, उसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। तो कोशिश ये किया करें जिसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, मक्का मदीना से हो, वो चीजें खरीद कर लेकर जाए। कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने लगा हूँ जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मक्का मदीना से है। हजाजी ग्राम, अल्लाह ताला ने अहले अरब को कुछ ऐसे तबरकात से नवाजा है जिनका नेमो बदल पूरी दुनिया में नहीं। जो तबरक अल्लाह ताला ने अहले अरब को दे दिए वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिए। हजाजी ग्राम, पहला तबरक जो अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिया है वो है आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म का एक कतरा एक तरफ, 7 समंदर पानी एक तरफ, फिर भी आबे ज़मज़म के एक कतरे की फजीलत 7 समंदर पानी से ज्यादा है। हजाजी ग्राम, आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है जिसमें अल्लाह ताला ने खुराक की ताकत रखी हुई है। अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, आपके पास खाना खत्म हो गया है, आपके पास आबे ज़मज़म का पानी मौजूद है, आप आबे ज़मज़म का पानी पिएंगे तो आपकी वो सारी भूख खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने इस पानी में रखी हुई है। हजाजी ग्राम, ये आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है जिसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पीकर बड़े हुए थे, जिनकी अड्डियों से ये चश्मा निकला था, और वही आबे ज़मज़म का पानी पीकर बड़े हुए थे। हजाजी ग्राम, ये बहुत लंबा किस्सा है, बाद में बताऊंगा तबरकात के बारे में। जो हमारी जियारत आ गई है मस्जिद किबलतैन, 2 गुंबदों वाली मस्जिद, 2 किबलों वाली मस्जिद। एक इसका गुंबद मस्जिद अक्सा की तरफ है और दूसरा गुंबद जो है वो खाना काबा की तरफ है, जिस पर कबूतर बैठे हुए हैं, ये खाना काबा की तरफ है, और दूसरा गुंबद जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ है। हजाजी ग्राम, देखते जाए गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी का तयन करते जाए, सीधे जाए और सीधे वापस आए। और जो सामने बड़ा दरख्त है, किक्कर का दरख्त है, किक्कर का दरख्त है, 1 मिनट बैठे, ये किक्कर का दरख्त है। ऐसा इसकी निशानी लगाते जाए, यहाँ किक्कर का और कोई दरख्त नहीं है, ये बड़ा किक्कर का दरख्त है, यहाँ गाड़ी हमारी लगी होगी। अब हम पहुंच सके हैं मस्जिद किबलतैन। ये जो देख रहे हैं वाइट वाली मस्जिद, ये मस्जिद किबलतैन। जो ये गुंबद दिख रहा है आपको, ये किबला की तरफ है, काबे, खाने काबे की तरफ है, और उधर उस साइड में मस्जिदुल अक्सा की तरफ किबला है। ये यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला चेंज कर दी। यहाँ पे देखें उज़ाज़ कराम काफ़ी लोग आए हैं तादाद में। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखें, ये सारे लोग ज़ियारत करके आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत रस है, देखें सारे लोग आए हैं ज़ियारत करने। आप देखें, आप आएँ तो ज़रूर एक बार आएँ, यहाँ पे देखें एक बार और ज़ियारत करें। और ये लोग पब्लिक निकल रही है, यही नीचे वज़ू बनाने की जगह है, और यहीं से ऊपर भी चले जाते हैं। और यहाँ पे देखें इतर बेच रहे हैं, आप इतर भी खरीद सकते हैं। और ये चेक करा रहे हैं, फ्री में लगा के हम भी लगवाते हैं। चलें अब अंदर चलते हैं। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वो देखें और ज़ियारत करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये साइड में वज़ू खाना भी है, और सीधा यहाँ से ये जो हज्जाज कराम उतर रहे हैं, यहीं से ऊपर जाना है। तो चलिए हम अब ऊपर चलते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं हज्जाज कराम कितनी तादाद में आए हुए हैं, आप पीछे देखें। चलिए अब आगे चलते हैं, और हम सीढ़ी के द्वारा अब आगे चल रहे हैं, और आगे चल के हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। आप देखें और ज़ियारत करें। ये देखें यहाँ पे
इस साइड से अब हमको जाना है, ऊपर देख सकते हैं ये मीनारा कितना खूबसूरत है। इस साइड से हमको जाना है और ये लोग पानी पी रहे हैं यहाँ पे, और उधर खजूर का दरख्त है आप देखें। और यहाँ पे अब चले अंदर चलने की कोशिश करते हैं, रस बहुत है तो चलिए आगे चलते हैं। चप्पल उतार लेते हैं पहले, यहीं पे चप्पल रखने का आगे व्यवस्था है, तो वहाँ पे हम चप्पल रखेंगे फिर अंदर चलेंगे। आप देखें आगे कितनी भीड़ है, और हम अभी यहीं पे चप्पल रख देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम चप्पल रखते हैं, चप्पल रखने वाली जगह इंशाल्लाह, तब आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने किबला दिख रहा है ये वाला, ये मस्जिदुल अक्सा की तरफ है, और ये वाला किबला मस्जिदुल हराम की तरफ है, खाने काबा की तरफ। और चलिए हम आपको सारी मस्जिदें दिखाते हैं। और देखें ये वाला है मस्जिदुल अक्सा की तरफ, और इधर देखें कितने हुज़ाज़ कराम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सारे लोग ज़ियारत करने आए हैं, आप देखें, आप भी ज़ियारत करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को भी यहाँ आने का नसीब अता फरमाए। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है, आप देखें देखें यहाँ पे जितने लोग हाजी लोग आते हैं, गाड़ी पकड़ के चले आते हैं। यहाँ पे 1 घंटा लगता है आने जाने में, तो अगर आप भी आएँ तो ज़रूर एक बार आके ज़ियारत करें। बिलाल मस्जिद के पास से गाड़ी मिलती है, सुबह 6 बजे गाड़ी मिलती है, बस पूरा मदीना ज़ियारत कराती है। और ये देखें इधर आप कितनी खूबसूरत लग रहा है, ये देखें पहले, अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ये सामने खाने काबा की तरफ, और ये हो गया मस्जिदुल अक्सा की तरफ माशाल्लाह। ये देखें हज़ाज़ कराम सारे लोग वीडियो और फ़ोटो ले रहे हैं, देखें माशाल्लाह खूबसूरती चेक करें, अल्लाह अकबर। चलिए भाई अब ज़ियारत हो गया, बाहर निकल चुके हैं, अब चलते हैं बाहर से थोड़ा आपको दिखाते हैं और बाहर का नज़ारा देखें। मस्जिद किबलतैन के पास आप देख सकते हैं कितनी रस है। मस्जिद किबलतैन सारे लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग भी ज़ियारत करके निकले हैं, आप देख सकते हैं। हुज़ाज़ कराम आपको देखें, और सारे चीज़ दाना मसाला लौंग इलायची सब यहाँ पे बेचा जा रहा है। और यहाँ पे टोपी भी है, ये सब 2-2 रियाल की चीज़ है, सब 2 रियाल वाले आप देख सकते हैं। और चलते हैं अब अपने बस की तरफ। आप देख रहे हैं मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वक्त किबला चेंज कर दिए थे, 2 रकात पढ़ा के। और अब हम लोग चलते हैं अपनी, ये हमारी बस है, तो वो बस पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना बस लगा है, ये हमारी बस है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी बीवी और बच्चे को, छोटा सा बच्चा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हुक्म दिया था कि अपनी बीवी और बच्चे को पहाड़ों में छोड़ आओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को पहाड़ों में छोड़ने के लिए गए। तो हजरत इब्राहिम की बीवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बार बार पूछा कि आप हमें इधर क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। जब 4-5 दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने पूछा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि अगर आप हमें अल्लाह के हुक्म से इधर छोड़कर जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सर हिलाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि आप जा सकते हैं अगर अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी को उन पहाड़ों में छोड़कर हजाज कराम
یہ اسلام ایسے نہیں آ گیا. صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی ہیں. سن لیجئے, ہم اپنی بیوی اور بچے کو ایک رات کے لیے کسی جنگل میں نہیں چھوڑ کر کے آ سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو پہاڑوں میں چھوڑ کر آگے, جہاں نہ تو کوئی پانی تھا اور نہ ہی کوئی خوراک تھی. حضرت کرام, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے, رو رہے تھے, تو وہ اڈیاں اپنی گھسیٹ رہے تھے. اس وقت وہاں سے چشمہ نکلا جس کا نام ہے آب زمزم. حضرت کرام, وہ جب چشمہ نکلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی پانی پیا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے خوراک کی طاقت رکھ دی. اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے خوراک کی طاقت رکھ دی. وہاں خوراک نہیں تھی, صرف اور صرف آب زمزم کا چشمہ نکلا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی پانی پیا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پانی وہ پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خوراک کی طاقت رکھی ہوئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی پانی پی کر بڑے ہوئے. پھر لوگوں کی آمد و رفت ہو گئی, وہاں پر لوگ آنا شروع ہو گئے, وہاں آبادی بڑھتی گئی. پھر اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب تم اپنے بیٹے سے مل کر آؤ. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بڑا ہو چکا تھا. اتنا عرصہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے دور رہے. حضرت کرام, جب بیٹا اور باپ ملے, پھر دونوں بیٹے باپ نے مل کر یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. حضرت کرام, دوسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دیا ہے وہ ہے عجبہ کھجور. راستے میں آپ لوگوں کو حضرت سلمان فارسی والا باغ دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنت سے مدینہ منورہ میں لگایا, وہ عجبہ کھجور کا باغ ہے. عجبہ کھجور کے بارے میں سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو شخص صبح نہار منہ 7 دانے عجبہ کھجور کے کھائے گا اس دن اس پر نہ تو کسی جادو ٹونے کا اثر ہوگا, حتیٰ کہ اگر بچھو یا سانپ بھی کاٹ لے تو اس کے زہر کا اثر بھی اس شخص پر نہیں ہوگا. یہ عجبہ کھجور کی فضیلت ہے. حضرت کرام, آپ عجبہ کھجور کا درخت, چھوٹا پودا یا اس کی گٹھلیاں کہیں بھی لے جائے, دنیا کے کسی کارنر میں لے جائے, پاکستان, انڈیا, یو کے, کینیڈا, کہیں بھی لے جائے, اس کا درخت تو ہو جائے گا لیکن اس کو کبھی بھی عجبہ کھجور نہیں لگے گی. وہ اپنی نسل چینج کر لے گی. یہ تحفہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو ہی دیا ہے. عجبہ کھجور کا تحفہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو ہی دیا ہے. حضرت کرام, تیسرا تحفہ ہے روغن بلسان. روغن بلسان کے بارے میں سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاد کیا ہوا علاج, اسلام کا سب سے پہلا علاج. حضرت کرام, جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں کفار مشرکینوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس میں صحابہ کرام زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ بالنساں کے درخت کو ضرب لگاؤ. صحابہ کرام نے اپنی تلوار کے ساتھ بالنساں کے درخت کو ضرب لگائی تو اس میں سے آئل نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آئل اپنے زخموں پر لگاؤ بھی اور اس کو پیو بھی. صحابہ نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے طب نبوی, اس میں 70 بیماریوں کو لکھا گیا ہے بالنساں میں. حضرت کرام, روغن بلسان کا طریقہ استعمال سن لیجئے اور جن بیماریوں کے لیے خاص کر استعمال ہوتا ہے سن لیجئے. دمہ, شوگر, بلڈ پریشر, جرکان, بے اولادی, جوڑوں کا درد, خارش کا نہ ٹھیک ہونا, زخم کا نہ ٹھیک ہونا اور کوئی بھی اندرونی بیماری ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے 11 دن استعمال کرنا ہے. سن لیجئے حلیب غنم. حلیب کہتے ہیں دودھ کو, غنم کہتے ہیں بکری کو. بکری کا دودھ مل جائے تو سب سے اچھا, اگر بکری کا نہ ملے گائے اور بھینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. حضرت کرام, 1 پاؤ دودھ لینا ہے, 1 پیالی دودھ کی نیم, ہلکی نیم گرم دودھ کی, اس میں 3 قطرے روغن بلسان کے ڈالنے ہیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے. جو اندرونی بیماری ہے اس کے لیے, جو بھی اندرونی بیماری ہے. حضرت کرام, 11 دن استعمال کرنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے کوئی جو بھی آپ کو اندرونی بیماری ہوگی. اور بیرونی بیماری جیسے خارش ہے, جوڑوں میں درد ہے, زخم کا نہ ٹھیک ہونا, اس کے لیے 100 گرام زیتون کا تیل لینا ہے, اس میں 4 قطرے روغن بلسان کے ڈالنے ہیں. جہاں خارش ہے وہاں ہلکا سا مساج کرنا.
جہاں جوڑوں میں درد ہے وہاں ہلکا سا مساج کرنا، اور جہاں زخم ہے وہاں صرف محض لگانا ہے۔ اچھا جی کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، یہ بھی 11 دن ہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا جی کرام، چوتھا تبرک جو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دیا ہے وہ ہے اسمد سرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استعمال کرتے تھے، صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے، اسمد سرما استعمال کرو، اس سے نظر تیز ہوتی ہے، پلکیں گہنی ہوتی ہے۔ یہ اسمد سرما کوہ طور پہاڑ والا سرما ہے، جس پہاڑ پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ میرے مالک میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے ضد کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی جھلک دکھائی تھی، وہ پورے کا پورا جو پہاڑ تھا جل کر سرمے کا بن گیا تھا۔ اچھا جگرام، یہ وہی سرما ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما ہے۔ اچھا جگرام، آپ زمزم کا پانی آپ کو ایئرپورٹ سے ملے گا، جو ایک پاسپورٹ پر 5 لیٹر کی بوتل ملے گی 8 سے 9 ریال کی۔ اگر ادھر سے پانی لے کر جائیں گے وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، وہ آپ کو ادھر ہی ملے گا۔ دوسرا اجبا کھجور، ابھی ہم کھجوروں کے باغ میں جانے لگے ہیں، وہاں کھجوروں کی منڈی ہے، وہاں سے خریدے، وہاں تازہ کھجوریں ہیں، آپ کے ہوٹلوں کے ساتھ بھی دکانیں ہیں، وہاں سے بھی مل جائیں گی۔ اور اچھا جگرام، تیسرا اور چوتھا تبرک روغن بلسان اور اسمد سرما، یہ ہمارے پاس گاڑی میں موجود ہے، یہ ہمارے سعودی کفیل ہمیں دیتے ہیں، ہم اپنی روزی کے لیے ہم ادھر گاڑی میں فروخت کرتے ہیں حاجیوں کو، اس میں ہماری روزی ہوتی ہے، یہ ہم ادھر گاڑی میں فروخت کرتے ہیں۔ حجاج گرام، اسمد سرما جو ہے 5 ریال کا 1 ہے، 10 ریال کے 3 ہیں، اور روغن بلسان 20 ریال کا 1 ہے، 50 ریال کے 3 ہیں۔ اور حجاج گرام، یہی چیزیں اگر آپ مسجد نبوی کے ساتھ جو دکانیں ہیں، یہ اسمد سرما وہاں سے آپ کو 5 ریال کا 1 ملے گا، 10 کے 2 ملیں گے، یہاں سے آپ کو 10 کے 3 ملیں گے، یہی سرما۔ اور حجاج گرام، روغن بلسان یہاں سے 50 ریال کی آپ کو 3 ملیں گی، وہاں سے آپ کو 50 ریال کی 1 ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دکانوں کے رینٹ بہت ہے، کرائے بہت ہیں، وہ آپ ہی سے انہوں نے نکال لی ہیں، ملازموں کی تنخواہیں بھی آپ سے نکالنی ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں روغن بلسان اور اسمد سرما، جن حاجیوں کو ضرورت ہو وہ خرید سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت، اور ہم ابھی جا رہے ہیں، نکل چکے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہاں پہ بغان میں، اور وہاں پہ ہم جائیں گے اور کھجور کا مارکیٹ آپ کو دکھائیں گے۔ بہت بڑھیا کھجور ملتا ہے، اگر آپ آئیں تو کھجور لینا ہے تازہ، اگر کھجور لینا ہے تو آپ آئیں یہیں پہ دیکھیں اور چیک کریں۔ یہ وادی عثمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وادی ہے۔ اس وادی کا ابھی تک جو بجلی کا بل آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آتا ہے۔ اس وادی کا ابھی تک بجلی کا بل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آتا ہے۔ اور حجاج گرام، یہ جتنے بھی کھجوروں کے باغ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کا پرافٹ اور یہ وادی کا پرافٹ، دکانوں کا، مکانوں کا، جتنا بھی پرافٹ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، جو سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ حجاج گرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی غنی تھے، آج بھی وہ غنی ہے۔ اس وقت بھی ان کا پیسہ غریبوں میں ہی تقسیم ہوتا تھا، آج بھی ان کا پیسہ غریبوں میں ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ جتنا بھی اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حجاج گرام، وہ سارے کا سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ حجاج گرام، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا، ادھر سے وہ چیزیں لے کر جائیں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ جیسے میں نے یہ آپ سے روغن بلسان دکھایا، اسمد سرما دکھایا، یہ آپ لوگوں نے بہت کم خریدا ہے، یہ نہیں کہ میری روزی کے لیے، اس لیے نہیں بول رہا، جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ چیزیں خرید کر لے کر جانی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ابھی جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کھجوروں کے بارے میں، کھجوروں کے بارے میں سن لیجیے۔ ایسے تو کھجوروں میں یہ منڈی ہے، اس میں بے بہا قسم کی کھجوریں ہیں، لیکن جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کے بارے میں سن لیجیے۔ سب سے پہلی کھجور اجبا کھجور، اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ باغ لگایا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنت سے مدینہ منورہ میں وہ باغ لگایا، اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے بعد ہے امبر کھجور،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں نوش فرماتے تھے، ناشتے میں استعمال کرتے تھے عنبر کھجور، اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے بعد ہے برنی مدینہ کھجور، اس کو برکت والی کھجور بھی بولا جاتا ہے۔ برنی مدینہ کھجور کے بارے میں سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں برنی مدینہ کھجور کے 7 دانے ہوں گے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں برنی مدینہ کھجور کے 7 دانے ہوں گے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اور چوتھی کھجور ہے صفاوی، بغیر گٹھلی کے، جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، گٹکے نہیں ہوتی اس کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ 4 کھجوریں وہ ہیں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرات کرام، خریدنی آپ نے جو دل میں آئے گا وہی خریدنی ہے، لیکن بتانا میرا فرض تھا کہ جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ 4 وہ کھجوریں ہیں، برنی مدینہ، عنبر، عجوا اور بغیر گٹھلی کے۔ یہ 4 کھجوریں ہیں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر انصار انڈیا سے موجود ہوں مدینہ میں۔ یہ پیچھے ہمارے دیکھ رہے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ انہی کا باغ ہے یہ کھجور کا۔ تو چلیے ہم آپ کو اندر دکھاتے ہیں کھجور کیسی کیسی ہے، چلیں اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں اور کامنٹ اور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا۔ چلیے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اندر کھجور مل رہا ہے اور یہ باغان ہے، بہت بڑا باغان ہے، چاروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ اور کھجور یہاں پہ بہت سستا ملتی ہے، ابھی تازہ کھجور ملتی ہے، آپ کو لینا ہے تو یہیں سے لیں۔ اور آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کھجور دیکھیں، یہ کھجور کا مارکیٹ ہے، بہت سستا کھجور ملتا ہے یہاں پہ، کھجور بہت سستا ملتی ہے، ہر ٹائپ کی کھجور ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ دیکھے، رس دیکھے، کالا کالا جو دکھ رہا ہے وہ عجوا کھجور ہے، جو کالا دکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ساری تازہ کھجور ہے۔ یہ 50 کی 7 برنی برکت بادام والی چاکلیٹ جی، یہ کیسا ہے؟ 10 ریال۔ اس کا وزن کتنا ہے بڑے بھائی؟ ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ کتنا ہے؟ 200۔ کھا رہے ہیں
चारों खजूरें खड़ी हैं। आप देख सकते हैं। सौ का 10, 100 का 12 किलो। ये चेक करें आप, इसमें गुठली नहीं है, ये देखिए इसमें गुठली नहीं है, देख सकते हैं। और ये देखें इसमें गुठली निकाला नहीं है, इसमें गुठली नहीं है, गुठली है ये नहीं इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस्माने गनी रज़ियल्लाहु ताला ये तो बाग देख रहे हैं, ये उस्माने गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम से ये बाग है। नाम से क्या, उन्हीं का है ये। अभी भी इसका जो पैसा होता है ये गरीबों यतीमों में जाता है। अभी इनके नाम से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से बैंक भी है, उसी बैंक में सारी पैसा इकट्ठा होता है, जाता है और गरीबों यतीमों का काम आता है। पहले भी उस्मान गनी थे, आज भी गनी है, आप देख सकते हैं। और देखें बाग, ये पीछे जो बागान देख रहे हैं, ये हमारे पीछे जो हज्जाज कराम आए हैं ज़ियारत करने, ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है। और आप भी ज़ियारत करें और आप भी देखें। अब हम यहाँ से निकल के अब चलते हैं ज़बले वहद पहाड़ पे। चलिए आगे हम आपको ज़बले वहद दिखाते हैं। ये पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हजरत ग्राम हमारी अगली ज़ियारत है सईद शोहदा। सईद शोहदा जंगे ओहद वाली जगह। हजरत ग्राम इस्लाम में 3 बड़ी गज़वा हुई। पहली गज़वा बदर, दूसरी गज़वा ओहद और तीसरी गज़वा खंदक। हजरत ग्राम जब पहली गज़वा बदर हुई तो उसमें कफ़ारे मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें सरफ़रिश्त अबू जहल था। उन्हीं सरदारों का बदला लेने के लिए हिंदा नामी औरत उसने जंग का ऐलान किया। जजग्राम जब इस बात का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया कि ये जंग कैसे लड़ी जाए। तो उन सहाबा में से कुछ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये जंग शहर के अंदर लड़ी जाए, और कुछ सहाबा ने कहा ये जंग शहर से बाहर लड़ी जाए। तो तय ये पाया कि ये जंग ओहद के मकाम पर लड़ी जाए। जजग्राम ओहद पहाड़ के साथ एक छोटा पहाड़ है जिसका नाम है जबल रिमात। जबल कहते हैं पहाड़ को, रिमात कहते हैं तीर अंदाज को। जजग्राम
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ایسے صحابہ جو تیر اندازی کرتے تھے ان کو اس درے پر مقرر کیا اور ان کو حکم دیا خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. حجاج کرام جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلڑا کفار مشرکین پر بھاری پڑنے لگا. کفار مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ درے پر مقرر کیے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کفار مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ان 50 میں سے 40 صحابہ نیچے آ گئے. نیچے آ کر مال و غنیمت اکٹھا کرنے لگے. حتیٰ کہ 10 صحابہ جو اوپر تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ نیچے نہ جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نیچے نہ جائیں. لیکن ان 40 صحابہ نے بات نہ مانی. وہ نیچے آ کر مال و غنیمت اکٹھا کرنے لگے. اسی دوران خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. وہ کفار مشرکین کی گھوڑوں کی فوج کا سردار تھا. جب اس نے دیکھا کہ درے سے صحابہ نیچے آ گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر لیا اور پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے, جن میں آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 وہ صحابہ تھے جن کی شکل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. حجاج کرام ہمارے ان 3 صحابہ کی قبریں الگ ہیں, ہمارے 67 صحابہ کی قبریں الگ ہیں. ابھی ہم ادھر جائیں گے انشاءاللہ, وہاں آپ کو قبروں کی نشاندہی کرائیں گے, دعائے فائدہ کہیں گے, واپس اپنی گاڑی میں آئیں گے. حجاج کرام ابھی ہم ادھر ساتھ ہی احد کا پہاڑ آنے لگا ہے. احد کے پہاڑ کی زیارت کریں گے. یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر دیکھیں بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ احد کا پہاڑ ہے. احد کے پہاڑ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. احد کے پہاڑ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احد مجھ سے محبت رکھتا ہے, میں احد سے محبت رکھتا ہوں. احد مجھ سے پیار کرتا ہے, میں احد سے پیار کرتا ہوں. حجاج کرام یہ سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, ہمارے ساتھ کتنا سرکار پیار کرتے ہیں. حجاج کرام اس پہاڑ کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے, اس کی چڑھائی 3.5 کلومیٹر ہے, اور اس کا فضائی معنی کیا گیا تو یہ نام محمد بنتا ہے. حجاج کرام یہ پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے. یہ جنت میں جنتی لوگوں کا استقبال کرے گا. یہ آپ لوگوں کا جنت میں استقبال کرے گا. اس کی زیارت کر لیجئے. حجاج کرام آپ کو بتاتا چلو یہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے بالکل سامنے ہوگا. یہ پہاڑ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے سامنے ہوگا. تو کتنے خوش نصیب ہیں جب جنت میں بھی جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے گزر کر جائیں گے. حجاج کرام یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے, چلنے اور سننے کی توفیق بخشی ہوئی تھی. جب ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے تو ان 70 صحابہ کی تدفین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جنت البقیع کی طرف چل پڑے تو یہ احد کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ احد رک جا. احد رک گیا. احد سے پوچھا گیا کہ احد تو کیا چاہتا ہے, تو یہی پہاڑ احد کا زاروں قطار رونے لگا, زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70 صحابہ میرے دامن پہ شہید ہوئے ہیں, یہ جدھر بھی جائیں گے میں ادھر ہی جاؤں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو احد کے دامن میں ہی دفن کر دیا. حجاج کرام یہ احد کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد اگر تو کہے تو میں پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں. تو اس وقت بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اے میرے مالک, اے میرے رب, مجھے جو سونا جو چاندی نہیں چاہیے, مجھے اپنی امت کی بخشش چاہیے. حجاج کرام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
आखिरी सांस तक उम्मत की बख्शिश मांगते रहे। उसको जबले दिजाल भी कहते हैं। हजरत, ये सामने वो पहाड़ है आपके सीधे हाथ पर, जिस पर ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है जबले जुर्ब, जबले दिजाल भी कहते हैं। जब दिजाल आएगा तो इसी पहाड़ पर बैठकर अपनी हुकूमत करेगा। इस पहाड़ पर सऊदी बादशाहों के महल बने हुए हैं, देख लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए इस पहाड़ पर। जजग्राम, जब दिजाल आएगा तो इसी पहाड़ पर बैठकर अपनी हुकूमत करेगा। जजग्राम, आप लोगों को बताता चलो, ये पहाड़ मदीना की हदूद से बाहर है। ये पहाड़ मदीना की हदूद से बाहर है। दिजाल मदीना की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इधर अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों का पहरा लगाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं। 70,000 शाम आते हैं, रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं। जजग्राम, आप लोगों ने वो नात सुनी हुई है, 70,000 सुबह 70,000 शाम, मेला लगा हुआ है मोहम्मद के शहर में। जजग्राम, ये शायर ने जो मिसरा लिखा था इन्हीं फरिश्तों पर लिखा था कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं। जजग्राम, जो सुनने की बात है, गौर से सुनिए, गौर से सुनना, ये बहुत ही सुनने की बात है। जो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं, उन फरिश्तों की ता क़यामत तक दोबारा वारी नहीं आएगी। उन फरिश्तों की ता क़यामत तक दोबारा वारी नहीं आएगी। तो आप कितने खुश नसीब लोग हैं, कितने खुश नसीब लोग हैं आप कि आप रोजाना रोजा रसूल पर हाजिरी देते हो। सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जजग्राम, फरिश्ता सिर्फ एक दफा रोजा रसूल पर हाजिरी देगा, उसकी ता क़यामत तक दोबारा वारी नहीं आएगी। तो आप रोजाना, ऐसे भी हाजी हैं जो 4-4, 5-5 दफा रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं। जजग्राम, कितने खुश नसीब लोग हैं आप कि रोजाना रोजा रसूल पर हाजिरी देते हैं। फरिश्ते की निस्बत कहाँ और इंसान की निस्बत कहाँ। फरिश्ता एक दफा रोजा रसूल पर हाजिरी देगा, दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। तो सरकार आपको बार बार बुला रहे हैं कि आओ। जजग्राम, आप जो इधर मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, ये आपका या आपके पैसे का कोई कमाल नहीं। इसमें आपका या आपके पैसे का कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह ताला की जिन हाजियों पर खास नजर रहमत होती है वही इधर आते हैं। जजग्राम, पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों खरबों रुपया पड़ा है, लेकिन उनकी मंजूरी नहीं इधर, वो अभी तक इधर नहीं आ सके। कैसे आएंगे? जब तक सरकार नहीं बुलाएंगे तो वो कैसे आएंगे, जितना मर्जी पैसा हो जाए। और कुछ ऐसे हाजी मैंने देखे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। जजग्राम, जब मैं मदीने में आया था, मैं कसम खाता हूं मेरे पास सिर्फ 16,000 था, सिर्फ पाकिस्तानी 16,000 था मेरे पास। लेकिन मैं मदीने की गलियों में घूम रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इधर लोग पैसे से नहीं आते, जिनके दिल में हसरत होती है मदीने जाने की, वो ही इधर आते हैं। नीचे मेरे साथ जाएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़ियारतों के मुतल्लिक़ बताऊंगा, वहाँ नीचे जाकर भी ज़ियारतें हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी आ गया हूँ ज़ौलवाद पहाड़ पे, पीछे देख सकते हैं मस्जिद, और हम वहाँ पे देख सकते हैं 70 सहाबा कराम गए हैं। चलिए अब हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चले हम आपको ज़ियारत कराते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, ये बिल्डिंगों के दरमियान में से आपको इसलिए जहाँ खड़ा किया है कि आप लोगों को समझ आ सके। ये बिल्कुल ये बिल्डिंगों के दरमियान में से पहाड़ नजर आ रहा है आपको, खुरदरा सा पहाड़ जो है, अलग वो टुकड़ा है।
اس کے ساتھ دیکھیں اوپر کی طرف کتنا بڑا خلا ہے. یہاں سے تو وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن قریب جائیں گے تو بہت بڑا خلا ہے. حجاج کرام اس کے بارے میں سن لیجئے. جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تلوار کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس پہاڑ پر لے کر آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اس پہاڑ پر آئے، یہ جو آپ کو خلا دکھایا ہے میں نے، یہ اس وقت بالکل بند تھا، پہاڑ ایسے بند تھا. اس وقت یہ پہاڑ کا خلا نہیں تھا. جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اس پہاڑ پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے قطرے اس پہاڑ پر گرے تو اس پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنا پیٹ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنا پیٹ کھول دیا گیا. حجاج کرام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، وہ جگہ آج بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے سرکار ابھی اٹھ کر گئے ہیں یہاں سے. وہ جگہ ابھی تک ایسے ہے کہ سرکار ابھی اٹھ کر گئے ہیں وہاں سے. اور حجاج کرام اس جگہ سے اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے کہ یہ عطر یا پرفیوم کی خوشبو اس خوشبو کے آگے کچھ بھی نہیں. اس خوشبو کے آگے عطر یا پرفیوم کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے. حجاج کرام یہ زیارت آپ کو کروانی تھی. اب آگے جاتے ہیں انشاءاللہ وہاں قبروں کی زیارت کراتے ہیں آپ کو. آپ کو خوشبو الگ سی خوشبو ہے، وہ آ رہی ہے خوشبو سب کو. بے شک یہ پرفیوم کی خوشبو نہیں ہے، عطر کی نہیں ہے، آپ کو الگ سی خوشبو آ رہی ہے. حجاج کرام یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے. یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا میرے چچا کی قبر سے جنت کی خوشبو آئے گی. حجاج کرام یہ ہماری طرف جو پہلی قبر ہے جس کا پتھر گور رکھا ہوا ہے، یہ کالے پتھروں والی یہ دیکھے قبر سامنے جس کا پتھر گور رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. اور حجاج کرام اس کے ساتھ جو بیک سائڈ پر آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، اس کے دوسری طرف اس میں دو صحابہ ہیں. دو صحابہ کی مشترکہ ایک قبر ہے، ایک حضرت موصب بن عمیر اور ایک حضرت عبداللہ بن جاش. دو صحابہ کی مشترکہ ایک ہی قبر ہے. اور حجاج کرام جب بڑی چار دیواری کے اندر چھوٹی چار دیواری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی چار دیواری کے اندر چھوٹی چار دیواری، اس میں ہمارے 67 صحابہ کی مشترکہ ایک ہی قبر ہے. ہمارے 67 صحابہ کی مشترکہ ایک ہی قبر ہے. حجاج کرام میرے ساتھ مل کر سلام پیش کیجئے. حجاج کرام شہداء پر جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا، شہداء تا قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے. حجاج کرام میرے ساتھ مل کر سلام پڑھیے. السلام علیکم یا شہداء، السلام علیکم یا شہداء، السلام علیکم یا شہداء، السلام علیکم یا شہداء، السلام علیکم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم اللہ تعالیٰ، السلام علیکم حضرت موصب بن عمیر، السلام علیکم حضرت موصب بن عمیر، السلام علیکم حضرت عبداللہ بن جاش. السلام علیکم جناب. حجاج کرام ایک دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ کر دعائے فاتحہ کہیں. اور حجاج کرام جن کے عزیز و اقارب، جن کے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں، جن کے بیٹے بیٹیاں فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے شہداء کے صدقے میں. ان کی بخشش کی دعا مانگنی ہے شہداء کے صدقے میں. اور یہ دیکھیں صحابہ کرام یہاں پہ موجود ہیں. اور ادھر دیکھیں جبل رما پہاڑ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، اور یہ مسجد دکھ رہی ہے یہاں پہ. اور جبل وحد پہاڑ وہ دیکھیں وہ سامنے جبل وحد پہاڑ ہے. اور چلیے ہم آپ کو ادھر دکھاتے ہیں. یہاں پہ یہ جو بورڈ لگا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے
क्या क्या करना है यहाँ पे, कैसे रहना है, कैसे देखना है, कैसे ज़ियारत करना है। तो आप आएँ और ज़ियारत करें। देखें यहाँ पे एक तरफ 70 सहाबा हैं, एक तरफ 3 सहाबा हैं। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान यहीं पे हैं। सहाबा यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे देखें दोनों साइड में बना हुआ है, ठीक है। और जब भी आप आएँ तो ज़ियारत करें। ये हरम के नज़दीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट अब ज़ियारत है। ये अदम हरम के करीब है। और वो सामने जो दिख रहा है वो जबल वहद पहाड़ है। वहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दंदान मुबारक शहीद हुआ था तो वहीं पे गए थे। तो वहाँ पे सहाबा कराम लेके जब गए तो पहाड़ फट गया, वो अपना जगह दे दिया आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये देखिए ये मस्जिद है यहाँ पे, वो अंदर से बहुत खूबसूरत है। अब बस वाले ने टाइम नहीं दिया इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं। जब अगली बार नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे अंदर आके बनाएंगे और आप लोग को ज़ियारत कराएंगे। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत, यहाँ पे खुला खुला है और हवा एकदम मस्त ठंडा आ रहा है। ये मस्जिद आप देखें इंशाल्लाह। ये देखें ये पहाड़ी। अब हम चल दिए हैं, अब यहाँ से हरम की तरफ चलना है। और हमारे साथ आप भी बने रहें वीडियो में और देखते चलें, ज़ियारत करते चलें मदीना का। और ये पहाड़ ऐसी है जबल वहद कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करती है और हम पहाड़ से। तो आप इस पहाड़ को देखें और इस पहाड़ को प्यार से देखने के भी सवाब है। कब वापस आए कब नहीं, जजराम फिर पता नहीं कब आना हो कब नहीं आना हो। एक दफा फिर ज़ियारत कर लीजिए हो पहाड़ की। जजराम अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी मदीना मुनव्वरा की तमाम ज़ियारत मुकम्मल हुई। ये हमारी आखिरी ज़ियारत थी। अब हम इसके बाद अपने होटलों में जाएंगे। जजराम आप लोगों को मैंने ज़ियारतों के मुतल्लिक़ बताया, आप लोगों को इल्म हुआ? आप लोगों को ज़ियारतों के मुतल्लिक़ बताया, मैंने आपको गाइड किया। आप सब लोग मुझसे मुतमिन हैं, सब खुश हैं मुझसे? शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब हमारी मदीना के अलावा बदर के लिए गाड़ियां भी जाती हैं। बदर की ज़ियारत के लिए सुन लीजिए, बदर की हमारी 6 से 7 ज़ियारतें हैं। पहली पीर रूहा, पीर शफा, 2 पानी वाले कुएं हैं। एक में 70 अंबिया कराम ने पानी पिया, 70 नबियों ने पानी पिया, और एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबे दहन डाला। उन दोनों पानियों में हर बीमारी की शफा है। आप उधर जाएं, पानी पिए भी और अपने साथ पानी भर कर भी लाए, वो पाकिस्तान लेकर जाएं। उस पानी में हर बीमारी की शफा है। उसके बाद अबू ज़र गफ़ारी वादी हमरा है, जिनमें 1400 साल से आपा पहले मकानों में रहते, वो अभी मकान मौजूद हैं, उनकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। उसके बाद मस्जिद अरीश, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल अदा किए थे, आप लोगों को नवाफिल अदा करवाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बैठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। मुसलमानों की तादाद 313 थी, कफार की तादाद 1000 थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे मालिक, अगर आज कफारे मुशरिकीन ने मुसलमानों पर हमला कर दिया तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल किए थे।
जबल मलाइका पहाड़ है, उस पहाड़ पर फरिश्ते नाज़िल किए थे। पहले वो पहाड़ इस तरह पत्थर का था, जब फरिश्ते नाज़िल हुए तो पूरे का पूरा पहाड़ रेत का बन गया। उसके चारों तरफ जो पहाड़ है वो पत्थर के हैं, वो दरमियान में रेत का पहाड़ है, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। जहाँ शोहदा का मैदान, शोहदा की जंग हुई थी, वो भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। और जहाँ अबू जहल और 70 कफार को मारकर कुएं में फेंका था, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। और शोहदा का कब्रिस्तान जहाँ हमारे सहाबा की कब्रें हैं, वहाँ भी आपको लेकर जाएंगे। ये हमारी सारी ज़ियारतें हैं जो आपको करवाएंगे। हज्जाज किराम 160 किलोमीटर सफर है जाने का, 160 किलोमीटर आने का, 320 किलोमीटर सफर है। हज्जाज किराम आने जाने का एक हाजी का किराया 30 रियाल है, एक हाजी का आने जाने का किराया 30 रियाल है। हज्जाज किराम जिन हाजियों ने जाना हुआ, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर लीजिए। हज्जाज किराम जिस वक्त 6:30 हमारी गाड़ी जाती है, 6:30 से 7 बजे, और 1 से 1:30 बजे वापस आती है। जिन हाजियों ने जाना हुआ राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आमिर अंसार इंडिया से मौजूद हूँ मदीना में। अभी आप ये देख सकते हैं हमारी मदीना की ज़ियारतें पूरी हो चुकी हैं और अभी हम निकल चुके हैं जंगे बदर के लिए। बदर जा रहे हैं और हम आपको आगे बदर की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे और जगह ज़ियारत कराएंगे। और आप चलें हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ ही टाइम बाद हम लोग को पहले तो जाएंगे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में। जो पहले देखे हैं वो नहीं, ये दूसरी बाग है। आप चलें, आपको दिखाते हैं। उनका तो बहुत सारा बाग है मदीने में, वो गनी थे, अमीर बहुत थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत ऐसे ही बागान थी। और देखें वो सामने मस्जिद दिख रहा है आपको कितनी पुरानी। तो चलिए पहले हम चलते हैं उनके बागान में और चल के कुछ वहाँ पे भी खजूरें दिखाते हैं। आपने वहाँ पे खजूरें देखी पहले वाले बागान पे, अब इस बागान में आ गए, चलिए दिखाते हैं। और ये साइड में जो बाग देख रहे हैं, ये बाग भी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के, ये बाग है। और यहाँ पे एक वीरे कुछ तो बोला जाता है अरबिक में, कुआं है, यहाँ पे एक कुआं है उनके नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जाना बंद है। हम अभी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग में आ चुके हैं। पीछे देखें उजाज़ कराम सभी बस से उतर के, पीछे देखें अजवा खजूर की सारी बागानें हैं। तो हम अभी चल दिए हैं, अब जाके आपको आगे दिखाते हैं। और ये देखें सामने उजाज़ कराम, बहुत टाइम लगा। ये जो आगे गाइड चल रहे हैं बीच में कुर्ता पैजामा पहने हैं, पहले वाले गाइड हमारे दूसरे थे मदीना की ज़ियारत का, और ये गाइड चेंज हो गए हैं बदर की ज़ियारत के लिए। तो ये वैसे उतना क्लियर नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का बोलने का पढ़ने का तो अलग अलग तजुर्बा होता है, तो ये उतना नहीं समझा पाते हैं, लेकिन बताते हैं, लेकिन उतना क्लियर से नहीं बता पाते हैं। अब ये देखें हम आ गए हैं यहाँ पे अभी खजूरों को देखने, और ये देखें खजूर पैक हो रहा है वेट कर करके। ये अजवा खजूर है, अल्हम्दुलिल्लाह अजवा खजूर में बहुत शिफा है। और चलें अंदर आपको हम दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह खजूर देख के तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हर वैरायटी का खजूर है आपको, हर ये ब्लैक वाला अजवा खजूर है। ये खजूर सिर्फ मदीना में होता है। मदीना के बाहर अगर इसका पौधा लेके जाएं, अगर लगाएं, तो दूसरी नस्ल की खजूर हो जाएगी, लेकिन ये खजूर कभी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने मदीने वालों के लिए पैदा किया है। और आप यहाँ से ले जाएं, इसको खाएं, इसमें बहुत शिफा होता है। और ये सोचे कि इसका दरख्त कहीं ले आके लगा दें, वहाँ पे हो जाए, ये नामुमकिन है। ये इस नस्ल का होता ही नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। आप देखें ये सारी खजूरें कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। आप खा के यहाँ पे कितना भी खा के चेक करो, जितने हाजी हैं, हम हैं, कोई भी हो, सब खा के चेक करते हैं, कोई बोलने टोकने वाला नहीं है। एक नंबर मीठा है। यहाँ से हुज्जाज कराम जितने आते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान से, ये देखें अजवा खजूर है काला काला, ये हुज्जाज कराम जितने आते हैं 5 किलो 10 किलो 20 किलो ऐसे लेके जाते हैं। और ये बागान में है तो ये सारे खजूरें ताज़ा होती हैं। पहला मैं बागान दिखाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का,
یہ دوسرا بغان ہے. چلیے اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پورا پہلے دیکھ لیں آپ کو کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہم صبح آئے اس لیے رس کم ہے. یہ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کھجور کی بغان. ساری کی ساری کھجور ازوا کھجور ہے ماشاءاللہ. زندگی میں پہلی بار اس ایسے کھجور کے بغان میں آیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ ہم نے آ کے مدینہ میں یہ باغ سارے دیکھے. یہ دیکھیں آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب عطا فرمائے ایسے آ کے زیارت کرنی. یہ دیکھیں پیڑ میں لگ گیا ازوا کھجور. یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری کی ساری ازوا کھجور ہے. یہ کوئی اور کھجور نہیں ہے کیونکہ آپ کو موبائل میں نہیں سمجھ آ رہا ہے لیکن میں سامنے سے اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور ادھر ہماری بسیں لگی ہیں اور دیکھیں ابھی حجاج کرام کو انتظار میں. چلیے اب چلتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں. اب آ گئے ہم بس میں اب تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں آگے اور آپ کو ہم پتھر کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. چلیے اب سفر کے لیے نکل چکے ہیں. آپ دیکھیں کتنے مکات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. مکات مسجد ہے. یہ مکات مسجد ایسی ہے یہاں پہ مدینے سے جتنے آدمی جائیں گے عمرہ کرنے یہیں پہ احرام باندھا جاتا ہے. آپ کو اس سائڈ میں سامنے دیکھیں گنبد دکھ رہی ہے. وائٹ مسجد دکھ رہی ہے. یہ مکات ہے. ملک کے شام کی طرف روانہ کریں گے. وہاں تجارت کریں گے. جو اس کا نفع آئے گا وہ مسلمانوں کے لیے جنگی سامان خریدیں گے. اس کعبے کے سپر سلام تھا ابو سفیان تھا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا. ذکر کی ان پہ یہ بات آئی ہوئی یہاں سے صحابہ کو ٹولی کی صورت میں بھیجا. 10 12 20 الگ الگ اپنا قافلے کا رخ موڑ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی صحابہ کیا کریں کہ مدینہ کی طرف چلے جائیں یا جنگ لڑ کے جائیں. صحابہ کا کیا جذبہ تھا. انہوں نے کہا ہم کسی صورت مدینہ نہیں جائیں گے اور جنگ لڑ کے جائیں گے. اور قاسم نے کہا کہ آپ زبان ہم پہلی زیارت سے قریب پہنچ چکے ہیں. پہلی زیارت بیر روما کنواں. آپ وہ سامنے گنبد دیکھ سکتے ہیں وائٹ اور مینارہ. وہاں یہ بیر روا ہم پہنچ چکے ہیں. یہ کنواں ہے اس میں پانی پیتے ہیں ہم لوگ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس میں بھی ہے. اتنا ہم کو حدیث معلوم نہیں ہے لیکن چلیے آپ کو ہم آگے زیارت کراتے ہیں. یہاں پہ شاید آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیے تھے اور کچھ اس میں کرامات ہوئی ہے تبھی اس کا کچھ اہمیت ہے. نہیں تو کچھ اہمیت نہیں ہوتا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تو نسبت ہے اسی لیے یہ ایسا تھی. دیکھیں آپ سامنے بس دیکھیں حجاج کرام کتنی بھیڑ لگی ہے. چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ بہت بھیڑ لگی ہے اور چلے ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اور پانی وہاں سے بھریں گے. ماشاءاللہ یہ بدر سے جب مکہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے راستے میں یہ ساری جگہ پڑی تھی. اسی لیے جہاں جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کی پڑاؤ ڈالی وہاں سے کچھ نہ کچھ کرامت ہوا. تو چلیے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں. میں موجود ہوں بیر روا میں جو 70 صحابہ نے پانی پیے تھے. کتنے کا ڈبہ ہے؟ کون 5 Hamba via یہاں سے کنواں دکھتا ہے؟ نہیں پانی واپس پیتے ہیں.
चलो हाथी रोकने वाली सर ये कितने रियाल का छोटा वाला? इसकी बात देखो तो लेंगे और मैंने कहना ना सारियां पास से झुके जाते हैं और यहाँ पे देखें हम पानी भर लिए हैं और चले आगे एक और कुआं है, वहाँ पे भी चलते हैं। वहाँ पे भी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ न करामत कुछ हुआ है तो आपको हम बताएंगे। तो पहले यहाँ आप ज़ियारत कर देखें, ऊँट और बस कितनी सारी यहाँ पे दिख रही हैं। और ये जो है सामने दिख रहा है, इसी के अंदर वो कुआं है। कुआं का ज़ियारत का पूरा बाउंड्री गेट दिया हुआ है, इसी के अंदर है वो। ये जो बाउंड्री बनाया हुआ है कुआं यहीं पे है। यहाँ से हमने पहले आपको दिखाया, अंदर जाने नहीं देते हैं और साइड में लोग पानी भर रहे हैं। आप ये देखें खाली जगह कितनी खूबसूरत है। और ये ऊँट देखें, ये ऊँट कुछ करते नहीं हैं, चल रहे हैं। आप बहुत ऐसे हाजी हैं पास में जा फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आप देखें माशाल्लाह, देखें ये हाजी साहब। ये साइड में आप देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने में बाज़ार हुआ करता था। ये आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का नहीं, कुछ 100 साल पहले का होगा ये मार्केट। ये देख सकते हैं चारों ये साइड में ये मार्केट हुआ करता था और वही अभी टूट गया है। और आप देखें ये देखें, ये देखें ये बाज़ार हुआ करता था शायद, क्योंकि ये आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नहीं है शायद। ये मार्केट कुछ 100 साल पहले का होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमको इतनी डिफरेंस मालूम नहीं है, लेकिन हालांकि ये जिस तरह दिख रहा था उस हिसाब से बता रहा हूँ। और आप देखें यहाँ से हम निकलेंगे बदर के लिए, अलग निकल चुके हैं लेकिन आगे अब बढ़ रहे हैं। एक और कुआं आएगा, बीरे शिफा, शायद बीरे शिफा आएगा, वो ड्राइवर को मालूम होगा, लेकिन हमारे अंदाज से बीरे शिफा है। चलिए आपको ज़ियारत कराते हैं इंशाल्लाह। अब हम दूसरे ज़ियारत में हम लोग पहुंच चुके हैं बीरे तला, यानी जिसे बीरे शिफा भी कहा जाता है। तला एक वादी का नाम है। जैसे मुशरिकीन ने इस कुएं में जार मिला दिया था, उन्हें सोचा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापसी आएंगे वो इस कुएं से पानी पिएंगे और ये सब के सब शहीद हो जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी गई, इल्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दान डाला और ये पानी मीठा हो गया, जिसे बीर शिफा कहते हैं। और अब इस शिफा के नाम से भी पुकारा जाता है। बीर तला इस वादी का नाम है, बीर अभी में कुएं को कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं अभी मौजूद हूँ बीर शिफा वाली कुआं के पास, और पीछे देख सकते हैं वो लोग देख रहे हैं जो वही कुआं जो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दान डाला था उसमें और मीठा हो गया था। 70 सहाबा उसी से पानी पिए थे। खरा था पहले, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब डाला तो मीठा हो गया। तो आप देख सकते हैं वो पीछे, और ये उज़ाज़े कराम सब ज़ियारत करने आए हैं, आप देख सकते हैं पीछे। और वो पीछे, और हम पानी भर चुके हैं कुएं का, और पीछे देखें वो लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं। आप भी ज़ियारत करें, चलें आपको भी ज़ियारत कराते हैं। ये आप देखें, ये जो कुआं है आपको हम जाली से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुआं में पानी है, इस कुएं में आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दान डाला था। क्यों डाले थे? इसलिए कि यहाँ पे मुशरिकीन ने यहाँ पे इस कुएं में जहर मिला दिए थे कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आएंगे साहब, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आप तो समझ रहे हैं। इसलिए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लुआब जान डाला था और ये मीठा हो गया था पानी। आप सब सहाबा पिए थे पानी। आप ये देख सकते हैं हुज़ाज़े कराम सारे लोग हैं यहाँ पे आए हैं ज़ियारत करने,
और देखें ये मोटर से चल रहा है और यहाँ पे हाजी लोग पानी भर रहे हैं। और आगे चलें आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी है, आप देखें और ज़ियारत करें। यहाँ पे देखें खाने पीने वाली चीज़ भी मिल रही है, ये देखें। ये रास्ता रुको रमा फाइनली दोस्तों अब हम यहाँ पे ज़ियारत करके अब हम निकल चुके हैं बदर, उस जगह पे जहाँ हम जाना चाहते थे और सबसे ज़्यादा जाने की वहाँ चाहत थी। अब चलें हम आपको वहीं अब ज़ियारत कराते हैं, वही दिखाते हैं, वही बताते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और ये खूबसूरत मंजर देखें आप अपने आँखों से। और ये देखें हम अभी निकल चुके हैं बदर, उस जगह पे जहाँ पे जंग हुई थी। आपको थोड़ी देर में हम चल के आपको वहाँ दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये मोड़ क्रॉस करेंगे, राइट साइड में देखना, राइट में सीधा हज अमदर का कबीला जहाँ आबाद हुआ, जो पुराने खंडरा था पुनः हाजी साहबा। राइट साइड सीधे हाथ में देखना होगा, जो ही मोड़ क्रॉस करेंगे हजरत अबू दर का कबीला जो साहब रसूल थे, आज से 1400 साल पहले के खंडरात मौजूद है। और यहाँ पे पुराने दौर में खजूरों की मंडी भी लगती थी। ये देखें हाजी साहब राइट साइड पे सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ भी देखें, और ज्यादातर खंडरा जो मौजूद है वो राइट साइड सीधे हाथ पे। ये साहब रसूल हजरत अबू दर का कबीला जहाँ आबाद हुआ, और जहाँ पे पुराने दौर में खजूरों की मंडी भी लगती थी। ये आज से 1400 साल पहले के खंडरात मौजूद है। ये देखें हजरत अबू दर गफारी जो साहब रसूल थे, यहाँ पे उनका कबीला आबाद हुआ, और यहाँ पुराने दौर में खजूरों की मंडी भी लगती थी। साइड में रोक लेते हैं, यहाँ पे जगह तो मना होता है ना, मुखालफा हो जाता है। 1000 कोई भी गाड़ी भी सर ऐसा कर देते हैं। सारे के सारे 1400 साल पहले। 1400 साल पुराने के उस दौर के, जो उस वक्त हज़रत अबू दर गफारी जो साहब रसूल उस वक्त के मकानात यहाँ पे उनका कबीला रिहाइश पजीर था। उस वक्त उस दौर में यहाँ खजूर की मंडी भी लगती थी। ऐसे उस दौर सारा ना उससे सब सीधे हाजी साहबाना पर राइट साइड सीधे हाथ पे देखे वो बोर्ड लगा हुआ है बादल हमरा का। सामने देखे नीला बोर्ड लगे बादल हमरा का। राइट साइड में देखना हाजी साहब, ये सामने अल हमरा लिखा हुआ है, देखे नीले बोर्ड पे। राइट साइड पे सीधे हाथ पे यहाँ पे हजरत पीर मेरा निशान एक मरतबा हज पे आए हुए थे, और यहाँ पे उन्होंने क़याम किया बादल हमरा में, और उनको नींद आ गई और असर की नमाज का वक्त हो गया, और उन्होंने 4 फर्ज अदा किए और सुनते अदा नहीं की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए हजरत पीर मेर अली शाह, आपने मेरा शहर भी छोड़ दिया और मेरी सुनते भी छोड़ दी। तो हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब शेर पढ़ा कि ऐ पीर मेर अली किथे, पीर मेर अली किथे तेरी सुना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़िया। ये बादल हमरा है जहाँ पे हजरत पीर मेर अली शाह ने एक रात यहाँ क़याम किया। इत्थे ये जो पीर मेर अली शाह ने एक रात क़याम किया वो सामने देखा है सब कच्चे मकान सारे पाला और बाग नाल लगे और बड़ा भी बाग आए मकान कच्चे पाए उन्होंने होता मछलियाँ बढ़िया ऊपर करें या नीचे करना। ये सामने जो मस्जिद देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे जाने वाले हैं और आपको हम ज़ियारत कराने वाले हैं। और ये जो सामने मस्जिद दिख रही है, यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक हुआ करता था। अब यहाँ पे मस्जिद बन चुका है। अब आ गए हम, ये जंगे बदर की जगह है। आपको अभी नीचे उतरते हैं और यहाँ पे ज़ियारत कराते हैं इंशाल्लाह। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दुआ करते रहें, इंशाल्लाह दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अभी मौजूद हूँ बदर में, बदर के मस्जिद अरीस में। पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद अरीस है। यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक हुआ करता था। अभी मस्जिद इस पर बना दिया गया है। आप देख सकते हैं मस्जिद अरीस। अभी आपको इंशाल्लाह अंदर चलेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये देखें, क्या ड्राइवर साहब, ये भी पुराना है ना? ये देखें, ये जो दिख रहा है वो भी पुराना है। इधर घर भी देख सकते हैं, ये भी सब पुराने हैं। 1400 साल पहले के ये सब ओरिजिनल है। ये बनाया हुआ नहीं है बाद में कि ऐसा मार्केट बना, सब ओरिजिनल है। और जस्ट मस्जिद आरिश के सामने है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आप अंदर से देख सकते हैं, ये मस्जिद आरिश है। यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाले थे। यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक था। अभी यहाँ पे मस्जिद बन चुका है, ठीक है। आप मस्जिद को चेक करें, कितना खूबसूरत माशाल्लाह बना है। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है कि वाकई में देख के दिल खुश हो जा रहा है माशाल्लाह। ये देखें जुमर, यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये माशाल्लाह। अभी आपको हम बाहर भी चल के पीछे साइड से दिखाएंगे, आप वीडियो बने रहें। अब चलते हैं हम बाहर और बाहर से आप लोग को दिखाते हैं। और बगल में है, ये बदर में मौजूद है। देखो दवा बेचा जा रहा है दर्द का, और ये खजूर और ये दाने आप देख सकते हैं। और ये सब पुराने कबीले के सब आसार वैसे मौजूद हैं, उसी ज़माने के हैं सब। आप देख सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी बनाया गया है। जितने टूटे फूटे हैं सब उसी ज़माने के हैं। आप देखें और ज़ियारत करें, आप देख सकते हैं।
अल्लाह अकबर। ये मस्जिद जो है ये बदर में है, और बदर में आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे खेमा हुआ करता था, तो यहाँ पे बाद में चल के मस्जिद बन गया है। उस ज़माने में का ये देखें, ये सारी चीज़ें मौजूद है, ये आप देखें। और उसी जड़ पे ये घर भी जो तामीर हुआ है वो भी बना है, उसको तोड़ा गया नहीं है। आप ये देखें, और यहाँ पे बोर्ड लगा है, ये पढ़ भी सकते हैं आप देखें। अल्लाह अकबर, ये आप पढ़ सकते हैं इस पे। अल्लाह अकबर, ये देखें, इधर इधर वो पूरा गिरा पड़ा हुआ है, सब वही है। इधर लेके चलते हैं, और ये देखें, ये खजूर का बगान है। ये देखें, ये कबूतर, और ये वो सब असारे हैं। अल्लाह अकबर। आप अगर आप मदीना आए तो बदर ज़रूर आए। तो मदीना से 25 रियाल लगता है बदर ज़ियारत के लिए। 6 जगह पे ज़ियारत कराता है बस। ये सारी बस है, हुज्जाज कराम सब आए हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि 25 रियाल लगता है, पूरा 6 जगह ज़ियारत कराते हैं हुज्जाज कराम लोग को, आप देखें। और यहाँ पे आएँ ज़रूर। और उधर भी पीछे उधर देख सकते हैं, उधर भी कुछ आसार पड़े हैं, तो चलिए अब हम आपको वहाँ भी दिखाते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आएँ तो ज़रूर आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक हुआ करता था। आप चल, हाँ चल रहे हैं, चल रहे हैं, बस यहाँ से हम निकल रहे हैं, बस हाँ बस वहीं पे जा रहे हैं। और हमारे वो गाइड साहब थे, कह रहे हैं चलो अब टाइम हो गया, अब चलते हैं, अगली जगह पर आपको ज़ियारत कराएंगे। ये आगे आपको जो जाली दिख रही है, ये है बदर की ये कब्रिस्तान। ये देखें, यहाँ पे जंग हुई थी। ये जो जाली आपको दिख रही है, अभी हम नीचे उतरेंगे आपको दिखाएंगे। ये जो जाली दिख रही है, ये देखें खंडर जैसा कुछ है। और इधर देखें, ये कब्रिस्तान है, इसके देखें, ये इसके अंदर जंग हुई थी। यहाँ पे 13 सहाबा मौजूद हैं। 14वां सहाबा जो थे वो घायल थे, और उनकी रास्ते ही में वो शहीद हो गए। चलिए हम नीचे से आपको दिखाते हैं। अब हम नीचे उतर चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं हुज्जाज कराम सारे ज़ियारत कर रहे हैं। तो आपको हम आगे से चलिए ज़ियारत कराते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चलें हम आपको दिखाते हैं, और आप भी ज़ियारत करें इंशाअल्लाह। ये देखें, यहाँ से आपको अंदर से हम दिखाते हैं, आप देखें और ज़ियारत करें। ये देखें, माशाअल्लाह। आप दुआ करें और अल्लाह ताला आपको भी नसीब अता फरमाए ये ज़ियारत देखने के लिए, जगह देखने के लिए। ये देखें, यही वो जगह है जो जंग बदर हुई थी। यहीं पे 13 सहाबा यहाँ पे शहीद हुए, और एक सहाबा जो हैं वो रास्ते में वो शहीद हो गए। वो यहीं पे घायल हुए और रास्ते में शहीद हो गए। और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा है, बोर्ड पे 14 सहाबा का नाम लिखा है। हम आपको अभी वो आपको नाम दिखाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। आप देखें सामने हारिस मस्जिद भी दिख रहा है, और आप ये देखें हुज्जाज कराम दुआ कर रहे हैं, और ये देखें ज़ियारत और दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी आएँ तो आप भी ज़ियारत करें। अल्लाह से यही हम दुआ करते हैं, आप आएँ और ज़ियारत करें। बिस्मिल्लाह अकबर। ये देखें माशाअल्लाह, यहाँ पे आप याद रखें 13 सहाबा मौजूद हैं। और ये जो अभी नाम है, ये देखें 14 सहाबा के इस वाइट वाले पे नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इस पे 14 सहाबा का नाम लिखा हुआ है। और अब चलते हैं आगे आपको जबल मलाइका पहाड़ पे चलेंगे, और वहाँ पे आपको हम बता दें, ये जंग से पहले आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ किया और बोले, या अल्लाह, अगर ये 313 अगर सहाबा शहीद हो गए तो फिर ता क़यामत तक कोई
नाम तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और ये देख लो वो पहाड़ है जो जहाँ पे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उतारा। सामने जो पहाड़ दिख रही है रेतीली पहाड़, और ये इतना दूर में यही पहाड़ है कि रेतीली है। बाकी सारी के सारे पहाड़ जैसे रहते हैं, इस पे रेत है, प्योर रेत है, एकदम प्योर जो रेत कहते हैं। चले आपको हम नज़दीक से ज़ियारत कराते हैं, ठीक है। और ये देखें तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ कबूल करके अल्लाह ताला ने 2000 या कुछ, हमको मुख्तलिफ मालूम नहीं कितना हज़ार, लेकिन ये तो बताया जाता है। चलें और आपको हम वहीं से नीचे से आपको दिखाते हैं, आप भी ज़ियारत करें और शेयर करके, और दोस्तों और घर परिवार वालों को भी ज़ियारत कराएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोग को भी यहाँ पे ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आप ये देखें सारी पहाड़ों से अलग पहाड़ है ये, और बस जो दिख रही है ये सारे हज़ाज कराम आए हैं ज़ियारत करने के लिए। चलिए अब हम नीचे उतरते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये देखें ये जो रेतीली सामने आपको पहाड़ दिख रही है, ये पहाड़ और साइड में जो पहाड़ दिख रहा है ये एक ही है, बीच में रास्ता बना हुआ है। अब ये देखें अब जबल मलाइका पे हम मौजूद हैं। ये देखें ये जबल मलाइका है, ये ऐसी है कि ये दोबारा इस पहाड़ से जाता है फिर दोबारा आज चला जाता है। इस तरफ बदर है और बदर का कब्रिस्तान, और ये देखें जबल मलाइका ये है, ये पहाड़ देख सकते हैं आप। और देखें ये सबसे अलग है, इससे अलग है ये पहाड़, ये आप देख सकते हैं। ये चलिए अब सारी ज़ियारतें हो गई, अब बस में बैठते हैं और चलते हैं, कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें वो जो सामने सब पहाड़ें दिख रही हैं, इसी पहाड़ में कोई जबल मलाइका पहाड़ है इतना हमको भी कंफर्म नहीं है। इसमें भी आदमी इधर वाला है किधर वाला सोचता है, लेकिन जबल मलाइका यही है, सबको यहीं पे आके चेक कर देखता है, ज़ियारत करता है। अभी हम आ गए देखें वहाँ से जबल मलाइका, ये मस्जिद और ये हमारी बसें लगी हैं। अब चल रहे हैं खाना खाने और इंशाल्लाह आप हमारे लिए भी दुआ करें। अभी हम आ गए होटल पे, चल रहे हैं होटल में खाना खाने, अभी बदर में मौजूद हैं। चलिए आपको भी कुछ होटल के नज़ारा दिखा देते हैं, फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा मदीने के लिए। आप देखें ये पेट्रोल टंकी है, यहाँ पे होटल है और यहीं पे मस्जिद है। ज़ोहर का टाइम हो गया है तो हम लोग नमाज़ पढ़ के अब खाना खाने जा रहे हैं, और खाना खा के तत्काल मदीने के लिए हम रवाना हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारतें पूरी हुई और मदीना की भी ज़ियारत पूरा हो गया और यहाँ का भी। कच्चे मकानात नजर आ रहे हैं, देखें ये हजरत ज़ैनब आबिदीन का घर है और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त खुलता है रात के 10 बजे तक, इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं होती।